Hello, my dear students. Today I am here to explain you the chapter The Three Orders in a nutshell. It's the sixth chapter of your NCERT history book in class 11th. Now, see, as the name suggests, the three orders, here we are talking about the three social orders that existed in the European society during the medieval period. The period that we are studying in this chapter is somewhere between 9th and the 16th centuries. And the three orders are the three social orders that had dominated the European society during the medieval era. These three orders were the clergy, the nobility, and the peasantry. Among these three, the first two orders enjoyed several privileges, while the third one, that is the peasantry, they were the most downtrodden order. Both the orders, the first two orders enjoyed a good number of special status and privileges. They didn't have to pay taxes even, but the peasantry was burdened with all sorts of taxes. Okay, now before we start with these three orders separately, you should know what kind of society prevailed in Europe. So, if I talk of the medieval European society, the system that prevailed there is known as feudalism. Feudalism comes from a German word feud, which means a piece of land. That means the system that was there in the European society was based on land. The social relations that were formed in the society were based on land. Right? Basically, जो सिस्टम है फ्यूडलिज्म, ये एक टाइप का समझौते पे आधारित सिस्टम होता है, जिसमें कि जो लॉर्ड्स हैं या जो मालिक है वो अपने पेजेंट से काम कराते हैं. राइट? तो यूरोपियन सोसाइटी की बात की जाए अगर, तो जो फ्यूडलिज्म सिस्टम है ये बेसिकली एक खेती पे आधारित सिस्टम हम कह सकते हैं. एंड it was based on the relationship between the lords and the peasants. Let's discuss the three orders one by one now. Coming to the first order, that is the clergy. This was the priestly class, and they had a good number of land in their possession as well. So it was basically the Catholic Church which was dominating the first order, and they had their own lands, they made their own rules, they made their own laws, and the most important thing which made the church powerful was that they did not depend on the king. Hence, they were very powerful. The Christians all over the Europe, they were guided by the church and by bishops and clerics. Apart from the bishops and clerics and other priests, the head of the Catholic Church, जो head थे Catholic Church के, वो कहलाते थे Pope. And Pope used to live in Rome. अगर हम आज की बात करें, modern time की बात करें, so even today, the Pope lives in Rome, and Pope is still the head of the Catholic Church. Right? So this is about the Catholic Church. But apart from the Catholic Church, if we talk of Christianity at that time, there were some other religious minded people who did not live in the cities. They did not enjoy the city life as such, but they were deeply religious people, and they lived outside the cities, basically in isolated places. एकांत की जगहों पे ये रहते थे. These people were called monks. monks. The place where these monks lived
वर कॉल्ड एबेज और मोनेस्ट्रीज। एंड जनरली ये जो मोनेस्ट्रीज हैं जहाँ ये मंक्स रहा करते थे, ये भीड़ भाड़ शहरी इलाकों से दूर दराज के इलाकों में हुआ करती थी। इन मंक में से ही कुछ ऐसे मंक्स थे जो मोनेस्ट्रीज में भी अपने को बांध के नहीं रखते थे। These people, they moved from one place to another in order to preach other people. धार्मिक बातें, अच्छी बातें लोगों को प्रीच करने के लिए जगह जगह पे ये जाते थे एंड अपनी ज़िंदगी ये दान दक्षिणा के पे आधारित व्यतीत करते थे. So they lived on charity. These people were known as friars who did not live at one place but they moved from one place to another. So this is the clergy class. Basically those priests who lived in cities, they were pretty much rich, they had land also, they levied taxes also, and one of the most important taxes that was levied by the church was called tithe. It was a tax that was collected from the peasants. So now imagine, जिसके पास पैसा है वो टैक्स नहीं दे रहा, जो बेचारा गरीब है उस पे सारे के सारे टैक्सेस लाद दिए जा रहे हैं. Anyhow, coming to the second order, that is the nobility. Now जो टर्म फ्यूडलिज्म है ना, एक्चुअली ये जो टर्म है ये रिलेशनशिप जो लॉर्ड और पेजेंट का डिस्क्राइब करता है वो एक्चुअली नोबिलिटी और पेजेंट्री का ही डिस्क्राइब करता है ना. तो द नोबिलिटी एक्चुअली पूरे सोशल ऑर्डर का हम कह सकते हैं सेंट्रल फिगर हुआ करते थे. सबसे ज़्यादा ज़मीनें इनको ही मिलती थी एंड दे यूज्ड टू कंट्रोल large vast amount of land. And the system ये जो बन के आया है, this was called the system of vassalage. Now see, here you need to understand what the system of vassalage is all about. Basically vassalage मतलब है कि जो नोबल्स हैं वो किंग को अपना सीनियर मानते हैं, वो किंग को अपना लॉर्ड मानते हैं, और किंग जो इन नोबल्स को ज़मीन देते हैं वो उसकी देख रेख करते हैं, उस पर आर्मी मेंटेन करते हैं और उस पर टैक्सेस कलेक्ट करते हैं. लेकिन जो जनता, जो प्रजा लॉर्ड की ज़मीन पे रहती है, इन नोबल्स की ज़मीन पे रहती है, वो इनके अधीन हो जाती है. अंडरस्टूड? सो बेसिकली जो सिस्टम ऑफ वैसलेज है इसका मतलब यही हुआ कि जो ये नोबल्स हैं ये किंग को अपना एक तरीके से सीनियर एक्सेप्ट करते हैं और किंग की दी हुई ज़मीन की देखरेख करते हैं, किंग के नाम पे एक तरीके से छोटा मोटा रूल किया करते हैं, बट ये किंग के अधीन है. किंग जब भी इनसे आर्मीज़ मंगाएगा ये किंग के पास लेकर के अपनी आर्मीज़ इनको जाना पड़ेगा, इनको आर्मीज़ मेंटेन करनी होंगी. Understood? So the nobles enjoyed a privileged status. Nobles को जो ज़मीन दी जाती थी उसके ऊपर इनकी एब्सोल्यूट कंट्रोल हुआ करता था, राइट. एंड ये ट्रूप्स, जैसे मैंने बताया, इनको ट्रूप्स रेज करनी होती थी, इनको आर्मीज़ मेंटेन करनी होती थी, एंड दीज ट्रूप्स वर कॉल्ड एज फ्यूडल लेवीज़. ये जो लॉर्ड्स हैं, जो नोबल्स हैं, ये अपने ही खुद की अदालतें लगाया करते थे, दैट वर नोन एज कोर्ट्स ऑफ जस्टिस, और इनको इतना भी अधिकार मिला हुआ था कि ये अपने नाम से करेंसी, अपने नाम से सिक्के भी छपवा सकते थे. तो इससे हमें क्या पता चलता है? दैट दीज नोबल्स वर प्रिटी मच पावरफुल. नाउ 9th सेंचुरी ऑनवर्ड्स क्या होने लगा बेसिकली कि जो लोकल वॉर्स हैं, लोकलाइज्ड वॉर्स, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई. अभी पहले के ज़माने में क्या होता था ना कि जो आर्मीज़ और ट्रूप्स मेंटेन की जाती थी, दीज ट्रूप्स वर नॉट स्पेशलाइज्ड. जब लड़ाई होती वही पेजेंट्स को बुला लेते, किसानों को बुला लेते, मज़दूरों को बुला लेते और बोलते चलो लड़ाई करने चलते. बट 9th सेंचुरी के बाद से
जब से जो लोकल वॉर्स हैं ये एक नॉर्मल फीचर बन गई, इनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, तब ये रियलाइज़ किया किंग्स ने, नोबल लॉर्ड्स ने, कि हमको एक स्पेशलाइज्ड आर्मी चाहिए, हमें प्रॉपर सोल्जर्स चाहिए, हमें घुड़सवार चाहिए अगर हमें वॉर जीतनी है तो। ज़रूरत के हिसाब से या जो समय की मांग थी, उसने एक नए वॉरियर क्लास को जन्म दिया जिसको कि कहलाते हैं द नाइट्स, राइट। So these knights were basically, you can say, they were soldiers, trained soldiers, good soldiers, right? अब ये नाइट को काम क्यों करेगा लॉर्ड के लिए या नोबल के लिए? कुछ ना कुछ तो लेगा इन रिटर्न. सो द नोबल्स used to give these knights a piece of land, and the knight promised to protect it. This piece of land was called as fief, F-I-E-F. अब देखिए कैसे एक श्रृंखला, चेन रिएक्शन, चेन सिस्टम बनता जा रहा है. किंग ने ज़मीन दी नोबल्स को, राइट, तो नोबल किंग का वैसल बन गया. वैसलेज सिस्टम बताया था ना, राइट. सो किंग ने ज़मीन बांटी नोबल्स को, नोबल्स ने उनको प्रोटेक्ट करने का ज़िम्मा उठाया, उनको रूल करने का ज़िम्मा उठाया, आर्मी रेज करने का ज़िम्मा उठाया. फिर नोबल्स ने अपनी ज़मीन में से कुछ कुछ हिस्से इन नाइट्स को देना स्टार्ट कर दिया. जो ज़मीन नाइट को दी जाती थी वो कहलाती थी फीफ, और नाइट अब प्रॉमिस करता है नोबल्स को, नोबल लॉर्ड्स को, कि हम इसका प्रोटेक्ट करेंगे. तो दैट मीन्स अब नाइट वैसल बन गया किसका? नोबल्स का. सो दिस इज द सिस्टम ऑफ वैसलेज that we were talking about, right? So the second order basically जो nobility है वो nobles plus knights को मिला के बनती है. Another important aspect that has been mentioned in your book is about the manor, right? Now manor is basically the house of the lord, the noble lord, and manor कहाँ पे होता है? मेनोरियल एस्टेट में. मेनोरियल एस्टेट मतलब हुआ जो एस्टेट है, जो प्रॉपर्टी है लॉर्ड की. लॉर्ड जहाँ रहता है दैट इज कॉल्ड अ मेनर, एंड हिज प्रॉपर्टी इज कॉल्ड अ मेनोरियल एस्टेट. And if I talk of the manorial estate, then it is a vast amount of land जिसमें कि कई सारे गांव भी हो सकते हैं. And generally these manorial estates had everything which people required. Peasants भी रहते हैं यहाँ, laborers भी रहते हैं, soldiers भी रहते हैं, जंगल भी होता है इनमें, rivers भी बहती हैं, right? Water mills हैं, बेसिकली जो आटे की मिल्स होती हैं वो भी हैं, कॉर्न मिल्स हैं. सो जनरली यू विल फाइंड ईच एंड एवरी थिंग ऑफ डेली यूज विद इन अ मेनोरियल एस्टेट. सो अ क्वेश्चन इज समटाइम्स आस्क्ड वेदर द मेनोरियल एस्टेट वॉज सेल्फ सफिशिएंट. दो मोस्ट ऑफ द थिंग्स वर अवेलेबल बट दे वर नॉट सेल्फ सफिशिएंट, क्योंकि कुछ चीज़ों के लिए तो उनको आस पास के स्टेट से हेल्प लेनी ही पड़ती थी, राइट. सो लॉर्ड एंड हिज मेनर एंड हिज मेनोरियल एस्टेट, दिस इज द क्रक्स ऑफ द सेकेंड ऑर्डर दैट इज मेंशन्ड इन योर बुक. नाउ कमिंग टू द थर्ड ऑर्डर, द पेजेंट्री. पेजेंट्स कौन है? जो लॉर्ड के लिए काम करते हैं. अब पेजेंट्री में भी दो टाइप के पेजेंट्स थे, फ्री पेजेंट्स और अनफ्री पेजेंट्स. जो अनफ्री पेजेंट्स थे वो कहलाते थे सर्फ्स, SERFS. फाइन. द फ्री पेजेंट्स थे बेसिकली वो लॉर्ड के लिए काम करते थे, राइट. So the free peasants, they labored for cultivating the lord's fields to provide labor
rent. Apart from this thing, they had to pay a direct tax as well. That was called the taille, Taille, to the king. Fine. So फ्री पेजेंट्स के पास अपनी ज़मीनें होती थी, बट एट द सेम टाइम ये जो ज़मीनें हैं ये लॉर्ड ही दिया करते थे उनको. सो दे वर एज टेनेंट्स of the lord. These free peasants, they had to render military service, that is at least 45 days every year, और उन्हें हफ्ते के कुछ दिन निकालने होते थे जिसपे कि वो सिर्फ और सिर्फ लॉर्ड की ज़मीन पे ही काम कर सकते थे, अपनी ज़मीनों पे नहीं. जो ज़मीनें एक तरीके से रेंट पे लॉर्ड से ली होती थी, उन ज़मीनों पे भी वो काम नहीं कर सकते थे. जो लॉर्ड की डायरेक्ट खुद की ज़मीनें हैं, हफ्ते में कुछ दिन उनको उन ज़मीनों पे काम करना कंपलसरी था. नाउ जो दूसरा टाइप का पेजेंट है, जो सर्फ है, वो तो एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि बंधुआ मजदूर था. वो जितना भी खेती बाड़ी करता, सारा का सारा प्रोड्यूस लॉर्ड के पास ही जाता. फ्री पेजेंट जो हुआ करते थे, वो जो ज़मीन एक तरीके से लॉर्ड से रेंट पे लिया करते थे, उसकी जो हार्वेस्ट होती थी, जो पैदावार होती थी, वो उनके ही पास रहती थी. उनको रेंट देना पड़ता था लॉर्ड को, ऑफ कोर्स. बट जो अनफ्री पेजेंट है, जो सर्फ पेजेंट है, वो तो जो भी उगाएगा एक तरीके से वो लॉर्ड के पास ही जाएगा, राइट. और इसी के साथ साथ उनको भी लॉर्ड की ज़मीनों पे कुछ दिन के लिए काम करने जाना ही पड़ता था. ना ग्रेजुअली जो चीज़ें हैं यूरोप में, वो चेंज होना शुरू हुई, और जो सोसाइटी है उसमें भी काफ़ी चेंजेस आना स्टार्ट हुए. तो बेसिकली जो चेंजेस आए समाज में, इन चेंजेस के पीछे 3 मेजर कारण हैं. एक तो क्लाइमेट चेंज, दूसरा लैंड यूज़ का जो पैटर्न था उसमें चेंजेस आना स्टार्ट हुए, और तीसरा था चेंजेस आए एग्रीकल्चरल सोसाइटी में, राइट. ना इफ़ आई टॉक ऑफ चेंज इन क्लाइमेट, तो बेसिकली जो यूरोप का क्लाइमेट है वो ग्रेजुअली चेंज होना स्टार्ट हो गया. फाइन. और चेंज भी कैसा हुआ कि जो वहाँ पे ठंडा मौसम हुआ करता था, उसकी जगह कुछ गर्म मौसम होने लग गया, जिसकी वजह से अब खेती ज़्यादा होना पॉसिबल थी. सी व्हाट हैपेंस इज़, अगर बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना, तो वहाँ पे खेती करना पॉसिबल नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीम कोल्ड वेदर. बट जो एक्सट्रीम कंडीशंस थी, उनकी जगह ले ली बेटर क्लाइमेट ने आफ्टर 11th century, because of which now better agriculture was possible. Fine. Now next is change in land use. लैंड यूज़ बेसिकली अगर हम देखें तो जो खेती करने का पैटर्न था, जो खेती करने का तरीका था, उसमें भी काफ़ी चेंजेस आए. मल्टी क्रॉपिंग वॉज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड नाउ इन यूरोप, जिसकी वजह से काफ़ी जो खेती की पैदावार होती है, जो हार्वेस्ट होती है, उसमें काफ़ी फ़ायदे देखने को मिले. ना एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी चेंजेस आना स्टार्ट हो गए. जैसे कि पहले के ज़माने में वुडन प्लाउज यूज़ करते थे. प्लाव समझते हैं ना? सो वुडन प्लाउज वर यूज्ड. नाउ द वुडन प्लाउज वर रिप्लेस्ड बाय हैवी आयरन टिप्ड प्लाउज. जब हम प्लो के आगे जो टिप होता है, उसको अगर हम भारी लोहे का कर देंगे तो ज़मीन पे ज़्यादा चोट करेगा और मिट्टी ज़्यादा अपसाइड डाउन करेगा वो, राइट.
Next thing, the method of even harnessing the animals was changed. पहले जो नेक हार्नेस होती थी उसकी जगह अभी शोल्डर हार्नेस का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया. जो घोड़े थे दे वर बेटर शॉट विद आयरन हॉर्स शूज़ नाउ, जिससे कि उनके खुर उनके पैर खराब ना हों. अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग्स लैंड यूजेज में हमने देखा था जो मोस्ट इनोवेटिव चेंज था दैट वाज अ स्विच फ्रॉम 2 फील्ड टू अ 3 फील्ड सिस्टम. जो मल्टी क्रॉपिंग की हमने बात की थी, पहले 2 फील्ड सिस्टम था, 2 टाइप के क्रॉप उगाते थे. अब 3 टाइप के क्रॉप्स वो लोग मतलब 3 फील्ड में अपनी ज़मीन को डिवाइड कर दिया, जिसमें से कि 2 हिस्सों पे खेती करते, एक को फैलो छोड़ देते. नेक्स्ट कुछ साल ऐसे करेंगे, अगले के कुछ साल फिर वो पहले वाली ज़मीन को फैलो छोड़ देंगे, नेक्स्ट 2 हिस्सों पे खेती करना स्टार्ट कर देंगे. इससे क्या होता है, जो ज़मीन हम फैलो छोड़ते हैं वो अपने आप रिप्लेनिश उसके होने लगती है वो. अंडरस्टूड. सो मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड, फैलो सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड, जिसकी वजह से काफ़ी सारे चेंजेस सोसाइटी में आए और सोसाइटी ज़्यादा डेवलप होने लगी, लोगों के पास पैसा आने लग गया. एग्रीकल्चर चलो इम्प्रूव हुआ ही हुआ, बट साथ साथ में ही ग्रोथ हुई पॉपुलेशन की, ट्रेड की और टाउन्स की भी. नए नए शहर बसने लग गए. 11th century onwards towns began to grow. अब जब शहर होंगे तो शहरी जीवन के लिए कुछ सर्विसेज भी चाहिए होंगी, राइट. एंड पीपल पेड टैक्स ऑल्सो टू द लॉर्ड्स, जिनकी ज़मीनों पे वो रहते थे, जिनकी ज़मीनों पे शहर बन रहे थे, वो टैक्सेस भी लगाने लग गए. बट क्योंकि इनकम अच्छी थी so पीपल डिड नॉट माइंड पेइंग टैक्सेस नाउ. और एक रिवाज था बड़ा मज़ेदार, जो सर्फ हुआ करते थे ना, अगर वो सर्फ शहर भाग के आ जाए, राइट, अगर कोई सर्फ शहर भाग के आ जाता था और 1 साल 1 दिन तक उसको लॉर्ड नहीं शहर से पकड़ पाते तो वो सर्फ फ्री हो जाता था. इसीलिए एक कहावत आई कि टाउन एयर मेक्स फ्री. इसका मतलब गांव से भाग भाग के जो सर्फ हैं वो शहर में आके छुप जाते, और जैसे ही उनका छुपने की अवधि पूरी होती उसके बाद वो फ्री बन जाते, राइट. सो मैनी पीपल इन टाउन्स वर फ्री पेजेंट्स और एस्केप्ड सर्फ्स हु प्रोवाइडेड लेबर, अनस्किल्ड लेबर. अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग नई नई दुकानें खुली, नए नए मर्चेंट्स स्टैब्लिश हो गए शहरों में. लेटर ऑन there was a growing need for individuals with specialized skills like bankers, lawyers, teachers, and so on. So in order to sustain the city life, we need certain specialized trained service providers as well. और ये जो नए शहरी लोग, जो नई शहरी व्यवस्था आई, ये जो नए नए ऑक्यूपेशंस आए, बेसिकली ये नए लोग कहलाए 4th ऑर्डर. भाई फर्स्ट 3 ऑर्डर्स तो पहले से ही हैं, क्लर्जी, नोबिलिटी, पेजेंट्री. अब ये जो नए नए लोग आ रहे थे ये लोग कहलाए द 4th ऑर्डर, जो शहरी लोग हैं. बेसिकली शहर बसने के साथ साथ नए नए एक तरीके से कैथीड्रल टाउन्स बसना भी स्टार्ट हो गए. Now, what are these cathedral towns? Basically, 12th century onwards, very big churches were being built in France. And generally, these churches basically belong to the monasteries. और ये बनते कैसे थे? दान से. जो rich merchants होते हैं, they used to donate towards them, towards the building of these churches. So these cathedrals, that means large churches, they were built of stone. एंड ग्रेजुअली जो इनके आसपास का एरिया होता था वहाँ पे लोग बसना स्टार्ट हो गए. मान लीजिए मोनेस्ट्रीज़ के साथ कोई बहुत बड़ा चर्च बना तो ग्रेजुअली लोग आना शुरू करेंगे, है ना. धीमे धीमे यहाँ पे दुकानें लगना स्टार्ट हो जाएंगी, ये सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज बन जाएगा और इनके
चारों ओर नई नई बस्तियां, कस्बे ऐसे बनना स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे जैसे ज़्यादा लोग रहना शुरू करेंगे, ये भी एक ग्रेजुअली धीमे धीमे ये एक शहर बस जाएगा। अंडरस्टूड? नाउ टॉकिंग ऑफ दीज कैथीड्रल्स, बेसिकली दीज लार्ज चर्चेस पत्थर से बनते थे, लेकिन जो इनकी खिड़कियाँ होती थी उनमें रंगीन चित्रकारी बने हुए ग्लासेस लगते थे। कलर्ड स्टेन्ड ग्लासेस वर यूज्ड फॉर द विंडोज़। किस लिए भाई? सो दैट ड्यूरिंग द डे टाइम सनलाइट अंदर आएगी और जो उस पर चित्रकारी हुई है, जो कहानियाँ उस पर रंगीन बनी हुई हैं, उन कहानियों को जो लोग चर्च के अंदर हैं वो आराम से देख सकेंगे। और रात में जब चर्च के अंदर कैंडल्स जलेंगी तो जो लोग चर्च के बाहर होंगे वो उन खिड़कियों को उन कैंडल की रोशनी में उनकी स्टोरीज देख सकेंगे। जनरली जो स्टेन्ड ग्लासेस थे खिड़कियों पे, रोशनदानों पे, ये बाइबल की जो स्टोरीज़ हैं, जो बाइबल के पिक्चर्स हैं, उनको दर्शाते थे, है ना? सच अ ब्राइट आइडिया, इजंट इट? सो कैथीड्रल, दैट इज़ लार्ज चर्चेस, ये मोनेस्ट्रीज के साथ बनना स्टार्ट हुए और ग्रेजुअली इनके साथ साथ नए शहर बसना भी स्टार्ट हो गए। तो ये तो अब तक है प्रोग्रेस की कहानी, तरक्की की कहानी। बट 14th सेंचुरी में कुछ ऐसा हुआ कि जिसको कि हम क्राइसिस बोलते हैं, प्रॉब्लमैटिक चीज़ें होना स्टार्ट हो गई। जो प्रोग्रेस अभी तक यूरोप में हो रही थी वो धीमी पड़ गई। क्यों धीमी पड़ गई? क्योंकि वंस अगेन क्लाइमेट चेंज हुआ। नॉर्दर्न यूरोप में 13th सेंचुरी ख़त्म होते होते जो वार्म समर्स थे 11th सेंचुरी से लेकर के जो स्टार्ट हुए थे, जो पहले 300 सालों के जो एक गर्म मौसम स्टार्ट हुआ था, वो फिर से एक बार करवट बदली मौसम ने और कोल्ड समर्स अगेन वापस आ गए, जिसकी वजह से जो खेती करने के महीने हैं वो फिर से कम हो गए, खेती कम हो गई। दूसरा कारण क्राइसिस का क्या था कि जो ट्रेड है उसको भी धक्का पहुंचा, क्योंकि जो मेटल मनी ये लोग यूज़ कर रहे थे वो जनरली चांदी के सिक्के हुआ करते थे। अब चांदी के सिक्के तभी तो हम बना पाएंगे जब हमारे पास चांदी अवेलेबल होगी, सिल्वर अवेलेबल होगी। बट जो सिल्वर है उसकी जो क्वांटिटी है माइंस में ऑस्ट्रिया और सर्बिया की, वो डिक्लाइन कर गई, जिसकी वजह से द गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू रिड्यूस द सिल्वर कंटेंट ऑफ द करेंसी एंड दे हैड टू मिक्स देयर करेंसी विद चीपर मेटल्स, जिसकी वजह से उनकी ट्रेड काफ़ी प्रभावित हुई। लोगों को लगा ये तो मिलावट के सिक्के यूज़ करते हैं, राइट? एंड हेंस इट हैड अ बैड इम्पैक्ट ऑन देयर ट्रेड। मिलावट के सिक्के भी एक कारण है और साथ में भाई जब चांदी की अवेलेबिलिटी ख़त्म हो जा रही है, कम हो जा रही है, तो वो खुद में भी एक बड़ा ड्रॉबैक है इकोनॉमी के लिए, राइट? थर्ड चीज़ जिसकी वजह से 14th सेंचुरी क्राइसिस आई वो तो था ब्यूबोनिक प्लेग। देखिए इस ज़माने में हमने देखा ट्रेड होना स्टार्ट हो चुकी थी। ट्रेड होती कैसे थी? वाया सी रूट्स। शिप्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे, सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया करते थे। इन शिप्स के साथ साथ ही आगे प्लेग वाले चूहे यूरोपियन पोर्ट्स पे। जो शिप्स सामान लेके आ रही थी, जो मर्चेंट शिप्स हुआ करती थी, दीज शिप्स इन शिप्स के साथ आ गए चूहे, जिनके ब्यूबोनिक प्लेग का इन्फेक्शन था, जिसकी वजह से भाई चूहे शिप में आए, शिप का सामान पोर्ट पे उतरा और चूहे हर जगह फैल गए, जिसकी वजह से ब्यूबोनिक प्लेग बहुत लोगों में फैला एंड मैनी 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 पीपल डाइड। और इस ब्यूबोनिक प्लेग को नाम दिया गया है ब्लैक डेथ का, क्योंकि ये भी जैसे अभी कोरोना है ना, हवा में फैलता है, इस तरीके से ही फैला था और बहुत जाने गई थी।
इन 3 कारणों की वजह से बेसिकली 14th सेंचुरी क्राइसिस आया और अगेन यूरोप में एक तरीके से हम कहें तो जो प्रॉस्पेरिटी स्टार्ट हुई थी उसको धक्का पहुंचा. As a result of the crisis, there was social unrest. सोशल अनरेस्ट क्यों भाई? सब परेशान हैं. पेजेंट्स तो पहले से ही परेशान थे बेचारे, उनके पास तो ऐसे ही पैसे नहीं थे. अभी क्या है, जो लॉर्ड्स हैं उनकी भी इनकम घट गई है, इसलिए वो भी परेशान हो गए हैं. जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के प्राइसेस हैं वो नीचे आ गए. क्यों नीचे आ गए? क्योंकि डिमांड ही नहीं है. लोग मर गए, लोगों के पास खरीदने के लिए पैसे नहीं बचे. अब जब चीज़ों के दाम ही कम हो गए हैं तो जो लेबरर्स काम कर रहे हैं उनको तनख्वाह कहाँ से मिलेगी? तो उनकी वेजेस भी कम हो गई. एज अ रिज़ल्ट जो लॉर्ड्स हैं जिन्होंने बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे पहले कि चलो तुम हमारी ज़मीन पे काम करो, हम तुम्हें पैसे दिया करेंगे, अभी क्या होने लग गया, उन्होंने वापस लेबर सर्विसेज रिवाइव कर दी कि नहीं तुम हमारे यहाँ काम करो, बंधुआ मजदूरी करो, खाना दे देंगे, बाकी कुछ नहीं दे पाएंगे. अब ये तो पेजेंट्स को पसंद आना नहीं था, तो पेजेंट्स ने वायलेंटली इसको अपोज किया. राइट. एंड अपार्ट फ्रॉम पेजेंट्स, जो खेती कर रहे थे पेजेंट्स, उन्होंने तो अपोज किया ही, बट देखिए समय बदल चुका था. ये बहुत सारे पेजेंट्स शहर आ चुके थे, एजुकेटेड हो चुके थे, सो दे ऑल्सो रेज देयर वॉइस अगेंस्ट दिस स्टेप ऑफ द लॉर्ड्स. अब जो है नोबल लॉर्ड्स बुद्धू नहीं बना सकते. अब समाज में पेजेंट्स पढ़े लिखे हो गए थे, उनके पास भी पैसा आ गया था, तो वो अब क्यों आपकी मनमानी मानेंगे? इन सारी चीज़ों की वजह से हुआ सोशल अनरेस्ट. समाज में प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो गई. राइट. एज अ रिजल्ट ऑफ दिस अनरेस्ट, लॉर्ड्स की इज्जत, लॉर्ड्स की जो वर्चस्व था उसमें काफ़ी कमी आई और इसका फ़ायदा मिला किंग्स को. पहले के ज़माने में जो किंग्स थे ऑफ कोर्स उन्होंने तो अपनी ज़मीनें लॉर्ड्स को बांट दी थी, बट ग्रेजुअली हुआ क्या, लॉर्ड्स बिकेम द एक्चुअल रूलर्स. बट अभी समाज में प्रॉब्लम्स आ गई हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस है, लोग खुश नहीं हैं, पेजेंट्स रिवोल्ट कर रहे हैं. इसका फ़ायदा उठाया किंग्स ने. कैसे फ़ायदा उठाया? पूरी की जो पावर्स लॉर्ड्स के पास चली गई थी वापस अपने हाथ में लेने में. तो 15th और 16th सेंचुरीज़ के दौरान जो यूरोपियन किंग्स थे उन्होंने अपनी मिलिट्री और फाइनेंशियल पावर को दोबारा से स्ट्रेंथन किया. और ये जो 15th-16th सेंचुरी के रूलर्स हैं, दे वर नोन एज द न्यू मोनार्क्स. फाइन. They were called the new monarchs, like Louis XI in France, Maximilian in Austria. These were basically those monarchs जिन्होंने वापस सत्ता अपने हाथ में लॉर्ड्स से ले ली और अपनी खुद की आर्मी मेंटेन की. पहले क्या होता था, लॉर्ड्स आर्मी मेंटेन करते थे और जब किंग को ज़रूरत होती थी तो वो आर्मी किंग तक पहुंचाते थे. अभी चेंजेस क्या हो गए 16th-15th सेंचुरीज़ में कि जो किंग हैं वापस उन्होंने अपनी सारी पावर अपने हाथ में ली और आर्मी खुद मेंटेन करना स्टार्ट कर दी. एज अ रिज़ल्ट जो फ्यूडलिज्म था, जो लॉर्ड वाला सिस्टम था, वो डिक्लाइन हुआ. सो इट लेड टू डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड लॉर्डशिप इन द 16th century and further paved way for the rise of nation states in Europe. Right? स्टैंडिंग आर्मीज होने लगी, एक परमानेंट ब्यूरोक्रेसी होने लगी, एक नेशनल टैक्सेशन सिस्टम आ गया. स्पेन और फ्रांस में देखा जाए अगर, तो बेसिकली जैसे हमारे आज के ज़माने में देश है ना कहीं वो नेशन बिल्डिंग 16th सेंचुरी के बाद से यूरोप में स्टार्ट हो गई थी. अब आप ये सोच रहे होंगे कि तो लॉर्ड्स का क्या हुआ भाई? लॉर्ड्स तो बड़े चालाक थे. लॉर्ड्स जो थे बेसिकली उन्होंने किंग्स को अपोज नहीं किया. कुछ समय अपोज किया, लेकिन जब उन्हें लगा कि हमारी दाल नहीं गलेगी, हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा, वी विल बी एट अ लॉस इफ़ वी आर गोइंग टू अपोज द किंग, सो द नोबिलिटी बेसिकली
they managed a very smart shift in order to ensure their survival. अपोज करने की जगह जो वो कुछ समय के लिए किए, अब उन्होंने क्या किया, किंग के लॉयलिस्ट बन गए. लॉयलिस्ट मतलब वफादार, और किंग के वफादार बन गए. सो अगेन दे वर गिवन सम इम्पोर्टेंट पोजिशंस इन सोसाइटी. दो उतनी पावर उनके हाथ में नहीं आई, बट स्टिल दे मैनेज्ड टू रिमेन इन द सोसाइटी. राइट, सोसाइटी में रहे, इम्पॉर्टेंट पोजीशंस पे रहे, चेंजेस सोसाइटी में ऑफ कोर्स हुए, किंग्स अगेन पावरफुल हो गए. राइट, अपनी इन्होंने आर्मीज बना ली. अंडरस्टूड. एंड एक नया प्रोसेस चालू हुआ नेशन स्टेट के डेवलपमेंट का. अंडरस्टूड. I hope I have made the chapter clear to you all in a nutshell. उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ में आया होगा. Do read the chapter once and listen to the audio once again. Thank you so much. Wish you all the best.